الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ پر مشتمل یہ ہمارا کورس جس کا نام ہے سیرہ آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی آج 10th کلاس ہے، اور اس کورس میں ہم الحمدللہ عز وجل نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے لیے رہنمائی اور اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے اسباق حاصل کریں گے۔ تو ایز یوزول ہم اس سیرہ کورس کو اپنے پچھلے لیکچر سے کنیکٹ کریں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ جانیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل سیرہ کے جو باقی مختلف مواقع ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی آج کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر رہے گا اس میں ہم ہجرت کے بعد والا ایرا ڈسکس کریں گے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف تھا، تو وہاں پر کچھ ایسے میجرز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے جس سے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہاں پہ ریولوشنری سٹیپس لیے گئے، جن میں ایک سٹیپ مواخات کا تھا جس میں انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بنایا گیا۔ اسی طرح ایک اور سٹیپ جو ہسٹری آف دا ورلڈ میں ایک یونیک سٹیپ مانا جاتا ہے، تو وہ سٹیپ ہے چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں، اور میثاق مدینہ کو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک آرگنائزڈ وے میں جس میں نان مسلمز کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اچھی سٹیٹ جس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تو وہ مدینہ سٹیٹ کے اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا۔ اس کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کا بھی اس میں ماڈل ہے جو رہتی دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اس میثاق مدینہ پہ پتہ نہیں کتنی پی ایچ ڈیز بھی ہوئی ہیں، ریسرچز بھی ہوئی ہیں، اور اس کی بیس پر، اس کے پرنسپلز کی بیس پر حالات حاضرہ یا حالات حاضرہ کے جو مسائل ہیں، جن میں بہت سارے ایشین سٹیٹس کے وجود کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل بھی پیش کیا گیا ہے جو مسلم تھنکرز۔ تو آج ہم اس سے آگے کی باتیں کریں گے۔ تو اب مدینہ میں کیا ہوتا ہے؟ مدینہ میں ایک نیا ایک دور شروع ہوتا ہے، اس کو ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب غزوات شروع ہوتے ہیں، بیٹلز شروع ہوتی ہیں، ان میں کون کون سی میجر بیٹلز تھی اور ان سے ہم کیا لیسنز حاصل کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ لیں گے ہم دو کنسپٹس کو آج پہلے سٹڈی کریں گے، ایک ہے غزوہ، دوسرا ہے ریہ۔ دو ورڈز آپ یاد رکھیں گے۔ تو یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو چند اور باتیں بتاؤں گا، وہ یہ کہ غزوات و سریہ یعنی ان جنگوں کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ اگر آپ مدینہ کی لائف پہ غور کریں گے، جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو مارا جا رہا ہے، حضرت بلال کو مارا گیا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، بہت سارا پریشان کیا گیا، طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، یا ہجرت حبشہ کے لیے مجبور کیا گیا، یا شعب ابی طالب کے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سب واقعات ہوتے ہیں، آپ میڈینین پیریڈ جو آپ پڑھتے ہیں اس میں بہت سارا پرسیکیوشن ہوتا ہے، لیکن پرسیکیوشن کے ریسپانس میں کوئی ریٹائلیشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیسیولی اس پہ صبر کیا جاتا ہے، اس پہ چپ رہا جاتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو خفیہ طور پہ یا اعلانیہ بھی کنٹینیو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں سے کوئی ایسی ریئیکشن نہیں دیکھنے کو ملتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی جنگ پیش آئے یا جس کے نتیجے میں کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے۔ تو یہاں پہ بھی مفکرین جو تھنکرز ہیں وہ بہت سارے ایک سبق لیتے ہیں، وہ یہ کہ جب تک کسی جگہ پر انسان جب داعی ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو، تو نیکی کی دعوت دینے والوں کو پہلے ہی بڑے بڑے ایسے سٹیپس نہیں اٹھانے چاہیے جس کی اس کے پاس ریسورسز موجود نہ ہو۔ ابھی تک مسلمانوں کی تعداد مکہ میں بہت کمزور تھی، مسلمان اتنے اسٹرینگتھ والے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس اپنا ایک پاور نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی گریجولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دعوت کے مختلف ادوار کو
मुख्तलिफ अदवार के ज़रिए लेने को हुक्म दिया। मुख्तलिफ स्टेप्स में उन्होंने अपने दाइयाना किरदार अदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हमारे लिए चूंकि रोल मॉडल बनने वाली थी, वरना अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, अल्लाह ताला ने उनको इख्तियारात दिए थे, वो पहले ही ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाते कि लोग ईमान लाते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए मशाल राह है, तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए ह्यूमन बेहतरीन मॉडल बन के हमारे लिए दिखाया। तो मक्का में कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते मुसलमान। जब मदीना में आते हैं, अब मदीना में चूंकि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो मुहाजिरीन थे, वो अपना घर बार छोड़ के आ गए थे, माल छोड़ के आ गए थे, मकान छोड़ के आ गए थे, बाज की औलाद भी उधर ही रह गई थी, बाज के रिश्तेदार रह चुके थे। तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कहाँ आ गए थे, मदीना तो मुनव्वरा आ गए थे, ताकि सुकून की सांस लेने लगे। लेकिन वहां पहुंचकर भी इन कुरैश ने, जो एनिमीज ऑफ इस्लाम थे, उन्होंने वहां भी अपने इस प्रोसिक्यूशन को जारी रखा। दो तीन इंसिडेंट्स जो हदीस में रिपोर्ट हुए हैं, एक दो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अबू दाऊद में एक रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को लेकर मदीना पहुंचे, तो कुरैश ने एक खत लिखा, और मदीना में एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो शख्स था, इसको एक लेटर लिखी जाती है। क्योंकि ये अब्दुल्ला बिन उबई वहाँ पे एक मुनाफिकीन का सरदार, वो बाद में बन गए, इसको पहले वहाँ पे सरदार बनाना चाहते थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नहीं आए थे वहाँ पे। तो इसको लेटर लिखी जाती है, इसको कहा जाता है कि आप के पास जो ये मुसलमान आए हैं, तो हम आपको एक वार्निंग देते हैं, या तो इन मुसलमानों को आप किल करो, या इनको वहां से एक्सपेल करो, इनको वहां से निकाल दो, वरना हम खुद मदीना पे हमला करेंगे, और फिर आपको हमारी तलवारें फेस करना पड़ेगी, यू वुड हैव टू फेस आवर स्वर्ड्स। और उसके बाद जो है ना, हम आपके माल को माल गनीमत बनाएंगे, और आपकी औरतों को अपनी लोनियां बनाएंगे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इन्होंने परसिक्यूशन वहां से भी नहीं छोड़ा। इस तरह एक और इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, ये बुखारी शरीफ में है। आपने सुना होगा कि औस कबीले का जो सरदार था, उसका नाम था साद बिन मुआज रदी अल्लाह अन्हु। तो ये उम्रा करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा गए। तो जब वहां पे उमरा कर रहे थे, उस दौरान उनको धमकियां दी गई। अबू जहल ने धमकी दी, कहा कि आपने वहां पे मुसलमानों को पनाह दी है, वगैरह वगैरह। तो इस तरफ फिर इन्होंने वहां पे बताया कि हम यहाँ पे हमला करेंगे अगर आपने ऐसा जारी रखा। ये मफहूम है उस रिवायत का। तो अभी तक धमकियों तक काम था। एक्चुअली भी ऐसे मेजर्स उन्होंने लिए थे कुरैश ने कि वो मदीना पे हमला करते, यानी अब भी मुसलमानों को वहां से चैन से रहने नहीं दिया जा रहा था। तो जब ऐसा होने लगा, मक्का छोड़ के भी गए, कुरैश को वहां पे तंग भी नहीं किया, बल्कि मुसलमान चले गए इबादत करने के लिए, सुकून से रहने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। उसके बावजूद भी उनको जो है ना परेशान करना इन्होंने नहीं छोड़ा। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नाजिल की, जिसमें जहाद की इजाज़त दी गई है। मुख्तलिफ रिवायत है कि कौन सी आयत है जिसमें जहाद की इजाज़त दी गई। तो एक ये रिवायत है, इब्न शहाब ज़ुहरी के मुताबिक ये आयत नाजिल हुई, जो सूरह हज की आयत नंबर 39 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उज़िन्न लिल्लज़ीन युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, कि मुसलमानों को इजाज़त दी गई है कि वो युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, वो उनसे फाइट करें जो उन पे जुल्म करते हैं। व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, और बेशक अल्लाह जो है वो उनकी मदद करने पर कादिर है। तो यहाँ पर जब जहाद की इजाजत दी गई, तो अब बैटल्स का दौर शुरू होता है। तो बैटल्स दो तरीके की होती है, एक है गजवा और दूसरी है सरिया। गजवा की जमा है गजवात, और सरिया की जमा है सराया। ठीक है। तो गजवात किन बैटल्स को कहते हैं? जिन बैटल्स में नबी अकरम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लीडर होते हैं, खुद जिन बैटल्स को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं। दूसरी बैटल की किस्म है सरिया। सरिया ऐसी एक्सपेडिशंस होते हैं, ऐसी मुहिम्मात होती हैं जिनमें डायरेक्टली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं रखते हैं, बल्कि सहाबा किराम इनके लीडर्स होते हैं, और सहाबा की मौजूदगी में ये बैटल्स होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सरिया। तो कितने गजवात हुए, कितने सरिया हुए, इसमें भी इख्तिलाफ है। तो बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि गजवात की तादाद 19 थी, बाज ने ज्यादा भी गिनी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस रिवायत के मुताबिक बता रहे हैं। तो 19 गजवात की तादाद बनती है।
इसी तरह सरिया की तादाद जो है वो 47 बनती है एक रिवायत के मुताबिक। ऑलमोस्ट नबी अकरम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 प्लस फाइट्स हुई हैं हिजरत के बाद। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अरसा तक इस दुनियाई फानी में ज़ाहिरी सूरत में रहते हैं, वो अराउंड है 9 ईयर्स। तो 9 ईयर्स में नबी अकरम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 60 प्लस बैटल्स लड़नी पड़ती हैं इस्लाम को कंसोलिडेट करने के लिए, स्टेट ऑफ मदीना को कंसोलिडेट करने के लिए और इस्लाम को मुख्तलिफ जगहों पर फैलाने के लिए। अच्छा, इन गज़वात में उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये डिफेंसिव बैटल्स, मोस्ट ऑफ द बैटल्स जो थी वो डिफेंसिव थी, क्योंकि जंग वहाँ से मुसल्लत की गई थी और मुसलमानों ने यहाँ से रिटायलेट किया। उसके बाद कुछ ऐसी थी जो स्ट्रेटेजिक भी थी कि जहाँ पर हो सकता है फ्यूचर में मुसलमानों पर हमला किया जाता हो या इस्लाम को नुकसान पहुँचाया जाए, तो उन सूरतों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना स्ट्रेटजिकली ऐसी बैटल्स दी गई और ये इस्लाम को डोमिनेट करने के लिए ये बैटल्स हुई। ठीक है, तो अब हम इन बैटल्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये हिजरत का पहला साल ऑलमोस्ट गुजरता है, तो अगले साल 622 में हिजरत हुई थी ना, तो उसके बाद पहले जो है ना छोटे छोटे सराया एक्सपेडिशंस होते हैं, जिनमें बहुत सारे एक्सपेडिशन का जिक्र है। मैंने दो तीन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक सरिया था हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को। इनकी मौजूदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा जिसमें 30 मुहाजिरीन थे, और इसमें इनका फ्लैग जो था वो वाइट फ्लैग था। फ्लैग भी होता था हर जंग में, जो है ना एक फ्लैग होता था। ठीक है, तो यहाँ से 30 मुहाजिरीन थे और इनको भेजा गया एक जगह पे, जिस जगह का नाम था सैफुल बहर। सैफुल बहर, तो इसको इंग्लिश सीरा बुक्स में या हिस्ट्री की बुक्स में सैफुल बहर प्लाटून भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भेजा गया, और वहां पे उधर से जो है ना कुरैश थे, तो कुरैश की तादाद ऑलमोस्ट 300 थी। इसमें बाज सीरा निगारों ने लिखा है कि अबू जहल भी वहां से कुरैश में था। तो जब वहां पे ये पहुंचे, जिस मुकर्रर जगह पे पहुंचे, ये असल में इसलिए था कि देखा जाए कुरैश मुसलमानों को नुकसान मत पहुंचा रहे हैं। कहीं कहीं ये फसलों पे हमला कर देते थे, कहीं लूटमार कर देते थे, और कई ऐसे एक्सपेडिशन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे ताकि हालात का अंदाजा लगाया जाए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखी जाए कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये एक किस्म की गश्त कर रहे थे कि ताकि देखा जाए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फाइट नहीं होती क्योंकि एक शख्स से जो अलाय था, कुरैश का भी अलाय था और मुसलमानों को भी अलाय था, वो बीच में उतरता है और वो लड़ाई नहीं होने देता है। इस तरह एक और एक्सपेडिशन है जो उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला की इनकी लीडरशिप में भेजा गया। तो इसमें तकरीबन 60 मुहाजिरीन थे। मुहाजिरीन वो सहाबा जो हिजरत करके मदीना से आए थे, 60 मुहाजिरीन थे। और इसका फ्लैग भी वाइट था। इसकी एक खुसूसियत आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें पहला एरो, फर्स्ट एरो ऑफ इस्लाम, ये फेंकते हैं हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह अन्हु। तो इसकी अहमियत यही है कि इस्लाम का पहला तीर जब फेंका गया, जब मान लो जंग के तौर पे पहला तीर अगर किसी ने फेंका, तो वो सायदा साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इन्होंने बहुत सारे तीर फेंके थे, मैं कह रहा हूँ इनकी तीर की शुरुआत, एरो की शुरुआत जो है पहले हजरत सईदना साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला ने की। इस तरह एक और एक्सपेडिशन होता है जिसको हजरत साद बिन अबी वकास से लीड करते हैं। इसमें भी वाइट फ्लैग था, और इसको इसलिए भेजा गया था कि कुरैश का रास्ता रोका जाए। अब कुरैश पे भी एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था ताकि वो मुसलमानों को मजीद परेशान न करें। तो इसमें कुफार पहले ही इससे भाग चुके थे। जब उनको खबर लगी थी कि मुसलमान आ रहे थे, वो पहले ही भाग चुके थे। ठीक है, इसके बाद भी कुछ होते हैं, छोटे मोटे गजवात होते हैं, लेकिन ये मेजर बैटल्स नहीं थी, ये छोटी छोटी बैटल्स थी। इसमें एक गजवा होता है, मैं उनके नाम ही इस तरह बताऊंगा। गजवा अबवा होता है, जिसको गजवा वदान भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिए आप, क्योंकि ये पहला गजवा है, गजवा
ابوا، یا اس کو غزوہ ودان کہتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ غزوہ ہے۔ اس طرح ایک اور غزوہ ہوا جس کو کہتے ہیں غزوہ بوات، غزوہ صفوان ہوتا ہے، اسی طرح سریہ عبداللہ بن جہش ہوتا ہے، غزوہ ذوالعشیرہ ہوتا ہے۔ تو سریہ عبداللہ بن جہش میں کیا ہوتا ہے، ایک قریش کا ایک آدمی جو ہے قتل ہو جاتا ہے، تو اس کا نام تھا عمر بن حضرمی، تو اس کی وہ بھی ایک وجہ بنتا ہے غزوہ بدر کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جب قتل ہو گیا، وہ بہت معزز شخص تھا، وہ بڑے خاندان کا تھا، تو اس کے بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا قریش نے تیاری کی تھی کہ مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں گے، تو وہ ہوتا ہے کس میں، غزوہ عبداللہ بن جہش، عمر بن حضرمی۔ یہ چھوٹے موٹے غزوات ہوئے تھے، ہجرت کے دوسرے سال سے شروعات ہو رہی ہے۔ ہم جو میجر غزوہ، پہلا بڑا غزوہ ہوا، اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر، 2 ہجری میں یہ ہوا، 624 سی۔ تو یہ کیا تھا، یہ غزوہ ایسا تھا جس کو یوم الفرقان قرآن نے کہا، یہ کرائٹیرین تھا، یہ ڈسٹنگوشنگ فیکٹر تھا حق اور باطل کے درمیان، اس کو الفرقان کہا گیا قرآن کریم میں، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا۔ تو اس کے کازز کیا بنتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے۔ ایک تو ہم نے یہ کہا کہ عامر بن حضرمی جس کا قتل ہو گیا تھا، کہاں پہ ہو گیا تھا، سریہ عبداللہ بن جہش میں اس کا قتل ہو گیا تھا۔ میں کچھ چیزیں جو ہے نا، کچھ فیکٹس ہر چیز میں نہیں لکھوں گا، کچھ چیزیں آپ سیرت کی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو میں اوور ویو بتاؤں گا ان چیزوں کا۔ ایک تو اس کا قتل تھا، اب قریش کو جو ہے نا، قریش کو ابھارا جا رہا تھا، ان کو پرووک کیا جا رہا تھا کہ آپ اس کا بدلہ لیں۔ دوسرا کیا ہوا تھا، ایک مسلمانوں نے ایک پریشر کریٹ کرنا تھا، کن پہ، قریش پہ، کیونکہ یہ ان کو آپ بھی ستا رہے تھے، ایسے ایسے آپ سیرت میں واقعات پڑھیں گے کہ کبھی ابی سفیان نے فصل پہ حملہ کیا اور فصل تباہ کر دی، کبھی کچھ اور کیا، کبھی مسلمان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ تو اب مسلمانوں نے بھی ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن لیا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ڈیسیجن لیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے، چونکہ ان کا ٹریڈ روٹ تھا مکہ سے، یہ ٹریڈ کرتے تھے، مکہ میں خود اپنا ٹریڈ تو نہیں ہوتا تھا، یہ اپنا سامان کہاں بیچتے تھے، یہ سیریا بیچتے تھے، یہ آپ کو پتا ہے، پہلے ہی عارف سر نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ اپنا سامان سیریا بیچا کرتے تھے، تو اس کا روٹ جو تھا وہ ویا مدینہ تھا، دیکھیے مکہ سے یہاں سے جاتے تھے اور ادھر سے بدر سے گزر کے یہ پہنچ جاتے تھے سیریا، ٹھیک ہے، یہاں سے ان کا روٹ تھا۔ تو ایک قافلہ انہوں نے بھیجا، وہ قافلہ کس کی لیڈرشپ میں بھیجا گیا، ابو سفیان۔ بعض ہسٹورین لکھتے ہیں کہ مکہ والوں نے اپنا سارا سامان، ساری انویسٹمنٹ اسی قافلے میں کی ہوئی تھی، اس میں سامان بھیجا ہوا تھا، وہاں پہ بارٹر سسٹم چلتا تھا، اس وقت کائنز یوز نہیں ہوتے تھے زیادہ، تو اس وقت انہوں نے اپنا سارا مال کس کو دے دیا، ابو سفیان کو دے دیا، اور ابو سفیان کے ساتھ ایک پوری ایک ٹیم بنائی اور ان کو بھیجا سیریا، اور سیریا میں ان سب کی انویسٹمنٹ تھی اس مال میں، اور وہاں سے وہ دوسرا مال اس کے بدلے لاتے، تو ان کا یہ سب مال مان لو ان کی میجر انویسٹمنٹ اسی میں تھی، تو انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اسی میں لگایا ہوا تھا۔ تو جب یہ یہاں سے سیریا گیا، اب وہ واپس آنے والے تھے، تو واپس آتے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ چلو بدر کے مقام سے چونکہ ابو سفیان کے قافلے کو گزرنا ہے، تو صحابہ کرام چلیں اور ہم اس قافلے کو روکیں گے، اور اس سے جو ہے قریش پہ ایک پریشر بلڈ ہوگا، جب پریشر بلڈ ہوگا تو وہ مسلمانوں کو مزید ستائیں گے نہیں، جیسا آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ایران اور امریکہ کی ابھی وار چل رہی تھی، یا ایران اسرائیل وار چل رہی تھی، تو ابھی ایران نے ایک ڈیسیجن لیا تھا، اناؤنسمنٹ کی تھی، کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے نا وہ بند کریں گے۔ اسٹریٹ آف ہرمز جو تھا وہ ایک ٹریڈ روٹ ہے جہاں پہ یورپ کا بہت زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے اس اسٹریٹ کے ذریعے، تو جب ایران نے وہ اعلان کیا، اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ٹرمپ نے بھی ٹویٹس کیے اور باقی لوگوں نے بھی، پھر جو پیس ٹاکس شروع ہو گئی اور سیز فائر ہو گیا۔ تو اسی طرح ان چیزوں کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، جب کسی کا کاروبار رک جاتا ہے، معاش رک جاتی ہے، فائنینشیل پرابلمز ہو جاتی ہے، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے پھر کوئی نہ کوئی ایسا ڈیسیجن لینے کے لیے، تو یہاں بھی ایک پریشر کی کریٹ کیا جا رہا تھا کہ تاکہ وہ مسلمانوں کو مزید نہ ستائیں۔ اب کیا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، تقریباً 313 صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، اور اس میں چونکہ صحابہ اس وقت جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے،
ये सिर्फ रोकने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा लोग नहीं होते, 60-70 लोग होते, कितने होते, यहाँ से 313 जा रहे। इनके पास कुछ खास हथियार भी नहीं थे, उतने अच्छे हथियार नहीं थे, जंग आलूद हथियार थे जिनको रस्ट लगा हुआ था। 2 हॉर्सेस थे, तकरीबन इस तरह 70 कैमल्स थे। मान लो ज्यादा सामान मुसलमानों के पास नहीं थे, क्योंकि ये जंग के लिए जा ही नहीं रहे थे, इनको सिर्फ रोकना था, एक प्रेशर क्रिएट करना था बस। लेकिन क्या होता है, तो अबू सुफियान को पहले ही पता चल जाता है, उसको खुफिया खबर मिल जाती है कि मुसलमान तैयार हैं आपको रोकने के लिए। अबू सुफियान एक शख्स को भेजता है, उसका नाम है दमदम बिन फारी, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। उसको भेजता है, कहता है कि जाओ कुरैश को कहो कि तुम्हारा सब माल लूट लिया गया है, जल्दी आ जाओ और हमें बचाओ। तो जब उस वो शख्स मक्का पहुंच गया, उसको जब मक्का में जब कोई अलार्मिंग खबर देनी होती थी, एसओएस खबर देनी होती थी, खतरा बताया होता था, तो वो क्या करते थे, वो ऊँटनी का नाक चीर देते थे या कपड़े फाड़ देते थे, ऐसे कुछ जो है ना अपना अपनी शक्ल बना लेते थे, ताकि लोगों को लगे कि कुछ कोहराम मच गया है, कुछ खतरनाक हो गया, कुछ बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तो ये जब वहां पहुंचता है, लोगों को कहता है कि तुम्हारा सब सामान जो है ना मुसलमानों ने ले लिया, मुसलमान ने उस पर कब्जा कर दिया, मुसलमान ने सामान लूट लिया। ऐसे ऐसे उसने बताया, तो लोग भड़क उठे, औरतें उनकी रोने लगी, इस तरीके की वो तराने गाने लगी, ताकि लोग जो है ना प्रवोक हों वार के लिए। तो वहां पे कुरैश जो है ना वो अब स्टार्ट, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, हमारा सब इन्वेस्टमेंट तो इसी में है, इसलिए हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, हम मुसलमानों से जंग करेंगे और अपना सामान वापस लेंगे। तो इसमें कुरैश के कितने लोग निकलते हैं, 1000 सोल्जर्स निकलते हैं। 100 हॉर्सेस उनके पास हैं, 700 कैमल्स इनके पास हैं। इनके पास खाने पीने के लिए इतनी चीजें हैं कि वो अपने एक एक बार जो है ना 10-10 ऊंट वो जबाह करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, गाते हुए चलते हैं, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स जो है ना वार सॉन्ग्स पढ़ रहे हैं, जिससे जो उनमें एंथुसिज्म आ जाए, जिससे जज्बा आ जाए, जंग लड़े वगैरह, इस तरह वो चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अबू सुफियान को जब पहले ही पता चल गया, तो अबू सुफियान ने अपना रूट चेंज किया। उसको जाना तो यहाँ से था, बदर से, अब वो बदर से नहीं जा रहा है, बल्कि कहाँ से जा रहा है, अबू सुफियान ने यहाँ पे यम्बो, और यहाँ से राबिक गया, और राबिक से मक्का पहुंच गया, इसने अपना रूट ही चेंज कर लिया। तो मुसलमान जो है ना यहाँ पे इसका वेट करते रह गए। तो इस तरीके से मुसलमान इसका रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हुए। तो अबू सुफियान ने मैसेज भेज दी कि हमारा काफिला तो बच गया है, अब आप जाइए और आप जंग करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आगे क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अबू जहल वहां से आ रहा था, इसमें जो था, इसमें कुरैश के बड़े बड़े लोग थे, अबू जहल था, बड़े बड़े सरदार थे। अबू जहल था, उतबा था, ये कुरैश का बड़ा सरदार था, इस तरह शीबा था, ये बड़े बड़े लोग थे। तो कुछ लोगों ने इनको मशवरा दिया, कहा कि चलो अब तो हमारा सामान बच गया, हमें लड़ाई करने की जरूरत क्या है। लेकिन अबू जहल ने कहा नहीं, हम तो बदर में जाएंगे, बदर में जाकर हम जश्न मनाएंगे, शराबें पियेंगे, पार्टी करेंगे, वहां पे लोगों को हमारा एक रौब बैठना चाहिए, हमारी डोमिनेंस लोगों को दिखनी चाहिए, हमारा पावर दिखना चाहिए, ताकि आगे हम पर कोई हमला करने की जरूरत ना करे। जब ये बदर के लिए निकले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंटेलिजेंस पहुंच चुकी थी कि ये तो बदर में आना चाहते हैं और ये लड़ना चाहते हैं। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरे करते हैं, एक शूरा बुलाते हैं, कंसल्ट करते हैं सहाबा को, सहाबा का अब देखते हैं कि सहाबा अपना क्या रद्द अमल देंगे। यहाँ पे देखना होता है कि जब लीडर को कोई भी इमीडिएट डिसीजन लेना हो, कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए जो मुश्किल हो, तो उसको अपने जो है ना टीम मेंबर से मशवरा कर लेना चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टीम मेंबर से मशवरा कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं बताइए क्या कर रहे हैं, हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो वहां पे हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो तो तैयार थे, उन्होंने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तैयार हैं, जो आप फरमाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी फरमाया हम तैयार हैं। लेकिन एक क्वेश्चन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में एक चीज थी, वो ये थी कि जब मुआखात हुए थे ना, या जब मीसा के मदीना लिखा गया था, तो उसमें एक आर्टिकल ये था, उसमें कहा गया था कि अगर मदीने में रहकर मुसलमानों पर कोई हमला करता है, तो उस वक्त यहूदियों को भी, मुहाजिरीन को भी, अंसार को भी मिलकर उसका दिफा करना है, सबको दिफा करना है। लेकिन अगर मदीने से बाहर कोई हमला करता है, तो अब उनको दिफा करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मुहाजिरीन ही लड़ेंगे, जो अंसार है उनको लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मदीना के नेटिव्स हैं ना। इसी तरह जो यहूदी थे उनको भी साथ देने की कोई कंपल्शन नहीं थी, सिर्फ उनकी ड्यूटी ये थी कि अगर मदीना पे कोई हमला करता है, तो ये कलेक्टिवली सब मिलकर मदीने की स्टेट को बचाएंगे, मदीने के एरिया को बचाएंगे। अगर मदीने से बाहर कोई हमला करता है, क्योंकि बदर जो था ये मदीने के बाहर है और मदीने से 80 माइल दूर है,
वेस्ट की तरफ। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि अंसार क्या कहेंगे। तो अंसार में एक सहाबी जो बहुत आशिक रसूल सहाबी थे, जो इनके सरदार थे, जिनका मैंने अभी बताया, साद बिन मुआद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो खजरज के सरदार थे। उनने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो तैयार हैं, आप हमें बताइए, हम अपने आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अगर आप फरमाएं तो हम समंदर में भी कूद जाएंगे आपके कहने पे। हम कोई भी इसमें कोई भी चूं-चरा नहीं करेंगे, आपके हुक्म पर हम लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। ये साद बिन मुआज का रिएक्शन था। इस तरह एक और सहाबी मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको कहा था कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तुम और तुम्हारा रब जाए और खुद लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम या रसूलुल्लाह कहते हैं कि हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आगे पीछे लड़ेंगे, आगे लड़ेंगे, आपके शाना बशाना लड़ेंगे, हम आपके साथ तैयार हैं। तो ये मुसलमानों का जब जोश और जज्बा देखा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो। इस तरह फिर थोड़ा मुआयना किया, इंस्पेक्ट किया, वहां पे देखा जो छोटे बच्चे थे उनको वापस भेजा गया। फिर ये बैटल होती है कहाँ पे? बदर के मकाम पर। बदर को बदर क्यों कहते हैं? बदर में एक एक्चुअली एक कुआं एक है, इस कुएं का जो मालिक था उसका नाम था बदर, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? बदर पड़ गया। तो यहाँ पर जब दो आर्मीज की कन्फ्रंटेशन होती है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को एक फतह व नुसरत अता करता है। और अल्लाह ताला फरमाता, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बदर में मदद की जब तुम बेसरो सामान थे। बेसरो सामानी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मदद और नुसरत अता फरमाई, और ये एक क्लियर विक्ट्री बन गई मुसलमानों के लिए, यौमुल फुरकान बन गया। और इसमें 70 कुरैश को मारा गया। हालांकि मुसलमान 313 थे, लेकिन गैरत ईमानी थी, ईमान मजबूत था, अल्लाह ताला पर यकीन मजबूत था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उनके दिलों में जोश मार रहा था। उसकी वजह से उनको कोई भी मगलूब नहीं कर सका। गैरत ईमानी थी, अल्लाह पर तवक्कुल था। अल्लाह ताला भी फरमाता, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। इसी तरह एक और आयत आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाता है, मयत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खोल देता है, अल्लाह ताला उनके लिए जो है राहें आसान कर देता है। तो इस तरह 14 मुसलमान भी इसमें शहीद हो गए। इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि कुरैश के बड़े बड़े लीडर्स जो है ना इसमें मारे गए, वासिल जहन्नम हुए, जिसमें अबू जहल है। उसको छोटे बच्चों, दो बच्चों ने जिसका नाम था मुआद और मुअव्वज, दो सहाबा, छोटे छोटे सहाबा ने इनको कत्ल किया। इसी तरह उमैया बिन खल्फ, इसको भी कत्ल किया गया। उतबा, शेबा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को ही बता दिया था, गैबदान आँख को देखते हुए फरमाया नबी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहाँ पर अबू जहल मरेगा, वहां पे निशानात दिए थे, यहाँ पे उतबा मरेगा, यहाँ पे शिबा मरेगा। जब कल देखा गया, जब बदर का दिन आ गया, जब लड़ाई हुई, जब मुसलमानों ने उसमें अपना पार्ट मिलाया, अपना हिस्सा मिलाया, तो उस वक्त देखा गया उन्हीं जगहों पर ये लोग मरे हुए पाए गए, अबू जहल भी, उतबा भी, शिबा भी। तो ये एक कुरैश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। पूरा साल कुरैश इसके लिए रोते रहे, और उनको इसका दुख रहा, मातम मनाते रहे, मरसिए पढ़ते रहे। उनकी औरतें उनको आर दिलाते रहे कि तुम तो बदर में इतने हमारे बड़े बड़े लोग मारे गए, उसका बदला लो। तो इसके लिए वो फिर प्रिपरेशन करते रहे, और इसकी वजह से फिर आगे गज़वे अहद पेश आता है। तो ये एक फर्स्ट क्लियर विक्ट्री थी मुसलमानों की, और इससे इस्लाम का गलबा जाहिर हो गया पूरी दुनिया पर। तो अब बदर से कौन कौन से लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं? नंबर एक, कि मुसलमानों में आपस में यूनिटी होनी चाहिए। सहाबाई किराम को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऑर्डर दिया, उन्होंने डिफरेंट ओपिनियंस नहीं दिए, वहां पे लीडरशिप की इत्तिबा की और आपस में यूनिटी की, डिसिप्लिन के साथ रहे। ईमान ईमान उनका कामिल था। ठीक है। इसी तरह जो है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरे किए। तो मशवरा करना भी एक बहुत अच्छा काम है। कंसल्ट करना, वन मैन आर्मी नहीं बनना होता, बल्कि कंसल्ट करते हुए कोई भी काम जब किया जाए, मशवरे के साथ किया जाए, तो उसमें अल्लाह ताला खैर फरमाता है। और अल्लाह ताला उनको मदद फरमाता है जो स्टीड फास्ट होते हैं, जो इस्तिकामत के साथ मैदान में रहते हैं। किसी भी अपने गोल पे जब इस्तिकामत के साथ इंसान रहेगा, तो अल्लाह ताला उसको मदद नुसरत अता फरमाता है। तो इस पूरे
لیکچر میں یہ چیز ہم نے ڈسکس کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا آغاز کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی، ان کا نیچر کیا تھا، ان کے ریزنز کیا تھے، اور ان کا وہ ڈیفینسو نیچر کے بھی تھے اور اسٹریٹجک بھی تھے۔ اسی طرح کچھ غزوات جو چھوٹے چھوٹے جو سرگیہ ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا، اور غزوہ بدر کو ڈسکس کیا جو بہت بڑا پہلا غزوہ ہے مسلمانوں کا، جس کو ہم کہیں گے فرسٹ میجر بیٹل آف دا مسلمز، اس کو غزوہ بدر کبرا کہتے ہیں، غزوہ بدر کبرا۔ تو ان چیزوں کو آپ بکس سے بھی دیکھ لیں، سیرت کی جو بکس ہم نے ریکمینڈ کی ہیں، جس میں خاص کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آخری نبی کی پیاری سیرت، ان چیزوں کو آپ بھی دیکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاسز میں ہم ان چیزوں کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ بتا دیجیے۔ جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ تو کوشچن مجھے نہیں لگتا کسی کا ہے۔ چلیے آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔